باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، باطل سے دبنے والے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ جناب صدر، محترم اساتذہ اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے یوم دفاع پاکستان۔ 65 کی جب جنگ ہوئی کفر پہ دنیا تنگ ہوئی، 65 کی جب جنگ ہوئی کفر پہ دنیا تنگ ہوئی، رحمت ہمارے سنگ ہوئی۔ آیا تھا دبنے دب گیا باطل، آیا تھا جھکنے جھک گیا باطل، آیا تھا مٹنے مٹ گیا باطل، قتل ہوا پھر خود وہاں قاتل، وجاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ صدر ذی وقار، ہمت، جرت اور بہادری ملے شہیدوں کا لہو سے لکھے جانے والی جذبات کی تاریخ کو یوم دفاع پاکستان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ عالی مرتبت چشم فلک نے وہ دن بھی دیکھا کہ جب میرا پڑوسی دشمن ٹینکوں اور توپوں کی فوج لے کر میرے ملک کی سرحدوں پر چڑھائی کر دوڑا۔ میرے ملک دشمن جنرل چودھری کا یہ حام خیال تھا کہ وہ افواج پاکستان کو حالت نیند میں دبا جائے گا، مگر وہ یہ نہ جانتا تھا، اس کو خبر نہ تھی کہ میری سرحدوں کے محافظ، میری ملت کے رکھوالے پچھلی راتوں کو جاگ کر رب کائنات کے حضور اپنی شہادت کی دعائیں مانگا کرتے ہیں۔ جناب والا، میری ملت کے محافظ اٹھے، ہمت اور جرت کا لبادہ اوڑا اور چونڈا کے مقام پر دنیا کا سب سے بڑا ٹینکوں کا قبرستان بنا ڈالا۔ شہادت کے متلاشی میرے شاہین اڑے اور 52 سیکنڈ میں دشمن کے 5 جنگی جہازوں کو ڈھیر کر ڈالا اور بتا دیا کہ شیر کے گچھاڑ میں ہاتھ ڈالنے کا کیا انجام ہوا کرتا ہے، اور للکارتے ہوئے بولے، ہمیں تم دکھاتے ہو نیچا جہاں سے، ہمیں تم دکھاتے ہو نیچا جہاں سے، اصل میں تمہیں راس عزت نہیں ہے، ہمیں تم دکھاتے ہو نیچا جہاں سے، اصل میں تمہیں راس عزت نہیں ہے، کہو تو کوئی اور رخ بھی دکھا دے، اکیلی ہم میں شرافت نہیں ہے۔ جناب والا، 6 ستمبر 1965 کے دن ہم نے اپنے دشمن کو بتلا دیا کہ جو کوئی بھی میرے ملک کی طرف ایک انگلی اٹھائے گا تو اس کا ہاتھ اس کے بازو سے علیحدہ کر ڈالیں گے، اور جس کسی شخص یا قوم نے میری ملت کی طرف ایک میلی آنکھ اٹھا کر دیکھا تو خدا کی قسم اس کی آنکھیں نوچ کر اس کی ہتھیلی پر رکھ دیں گے۔ جناب والا، میری ملت کے جیالے میجر عزیز بھٹی جیسے 20 نوجوانوں نے ایسی جرت کا مظاہرہ کیا کہ فضائے بدر کی یاد تازہ ہو گئی۔ ارے میرا دشمن چلا تھا چند گھنٹوں میں میرے ملک کو فتح کرنے، مگر میرے ملک کے نوجوانوں نے ایسے دانت کھٹے کیے کہ 17 دن گزر گئے اور ایک BRP نہر پار نہ کر سکا۔ تو پھر میں یہ فخر سے کہتا ہوں، ہم غزنوی ہم بت شکن، ہم غزنوی ہم بت شکن، تم اور ہو ہم اور ہیں، ہم غزنوی ہم بت شکن، تم اور ہو ہم اور ہیں، اے سومنات اے برخمن، تم اور ہو ہم اور ہیں۔ صدر ذی وقار، میری ملت کے ایک ایک ستارے میں اتنے شعلے ہیں کہ اگر بھڑک اٹھیں تو ایک آتش فشاں پہاڑ سے زیادہ تباہی کر ڈالیں۔ آپ ہی وہ قوم ہیں، جی ہاں آپ ہی وہ قوم ہیں کہ تمام جماعتیں، تمام فرقے، تمام نوجوان، تمام فرقے متحد ہو گئے اور اپنے ملک کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ تختاؤ تخت میں سے ایک چنا کرتے ہیں، تختاؤ تخت میں سے ایک چنا کرتے ہیں، ہم عجب شان سے دنیا میں جیا کرتے ہیں۔ توپ کیا چیز ہے، بندوق کسے کہتے ہیں، ارے توپ کیا چیز ہے، بندوق کسے کہتے ہیں، ہم تو ٹینکوں کی صفیں چیر دیا کرتے ہیں۔ جناب والا، میرا دشمن چلا تھا میرے ملک کو فتح کرنے، میری افواج پاکستان نے ایسے دانت کھٹے کیے، ایسے ناخن چنے چبوائے کہ پہنچ گیا اقوام متحدہ میں اپنی جان کی بھیک مانگنے، اور آج کا پاکستان ایک ناقابل تسخیر ایٹمی طاقت ہے اور ایک کامل دفاع کا مالک ہے۔ تو پھر میں یہ کہتا ہوں، ہاں ہم زندہ قوم ہیں، پائندہ قوم ہیں، ہم سب کی ہے پہچان، ہم سب کا پاکستان پاکستان۔ تراشی ہوئی امیدوں کے چمن کو ڈھلتے دیکھا ہے ہم نے ہجرت کا عزم اٹھاتے ہوئے، جناح کے ساتھ قدموں سے قدم لاتے ہوئے، ٹرینوں میں کٹتے ہوئے دیکھا، ٹکڑوں میں بٹتے ہوئے دیکھا، وفا کے پرچموں کی مانند سروں کو لٹکتے ہوئے دیکھا، پر ہم نہیں بھاگے، نہ ہمارے اجداد بھاگے تھے۔ عالی وقار، تاریخ کے اوراق پلٹتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں عزم و یقین کی تصویر شہیدوں
लहू से लिखी गई तहरीर और कायद के अनथक मेहनत की तस्वीर मेरा पाकिस्तान लहू लहान। जुल्म के शिकंजों को तोड़कर जब दुनिया के नक्शे पर उभरता है तो अदू जल कर कहता है चंद माहों साल से ज्यादा जम ना पाएगा और दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगा। पर उसे क्या मालूम कायद का सिपाही थका नहीं, हारा नहीं, डटा हुआ है महाज पर और इस अज़्म यकीन के साथ खूने दिल देकर निखारेंगे बरगे गुल, खूने दिल देकर निखारेंगे बरगे गुल। हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। हाँ आले वकार, हाँ हमने जिमखाना क्लब में शाम की चाय पीने का दावा करने वालों को अपने जूतों की धूल चटाई है। आले वकार, आज का दिन यौम दिफा ही नहीं बल्कि तजदीद अहद का दिन है। पुराने जख्म याद करवाने का दिन है, दुश्मन को उसकी औकात दिखाने का दिन है, क्योंकि हिंदू बनिया बहुत भुलक्कड़ हैं। आले वकार, ये भूल गया है मेजर सरवर शहीद को, राशिद मिन्हास को, एमएम आलम की फौजियों को कि जिसने एक ही मिनट में इसके 5 हथियारों को जमीन बोस कर दिया। ये भूल गया है मेजर अजीज भट्टी को, जान लालो को, कर्नल शेर खान को और चंद दिन पहले अभिनंदन के हाथ में पकड़े चाय के कप को। आले वकार, इस तकब्बर का मारा हुआ हिंदू बनिया इस कौम को ललकारता है कि जिसकी माँ बेटों को जन्म ही इसलिए देती हैं कि शहीद की माँ कहलाएं, क्योंकि शहादत है मतलूबे मकसूदे मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। आज फिर शिद्दत पसंद हिंदू हिटलर बना फिरता है, ललकारता है गज़वा बदर के जान नशीनों को, सलाहुद्दीन अय्यूबी के सपूतों को, मोहम्मद बिन कासिम के सिपाहियों को और इकबाल के शाहीनों को। आले वकार, इसे याद होना चाहिए कि ये ललकार किसको रहा है। ये वही मर्द मुजाहिद है जो हर मजलूम के साथ खड़े होते हैं और दुनिया की बेहतरीन फौज का एजाज पाते हैं। ये अपने कश्मीरी भाइयों को तन्हा कैसे छोड़ सकते हैं। हम जनूने गर्दिश के रुख मोड़ देते हैं, हम वो हैं जो जुल्म के पंजों को तोड़ देते हैं। न देखना मेरे वतन को मेरी निगाह से, हम ऐसी आंखें अक्सर फोड़ देते हैं, हम ऐसी आंखें अक्सर फोड़ देते हैं। शुक्रिया। सदर अली वकार, वक्त असर, डूबता सूरज, उभरती उमंगें, जिंदा दिलों का शहर लाहौर, गूंजती हवाएं, नाराए तकबीर की सदाएं और पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ के इन्हीं नारों और सदाओं में पाकिस्तान का परचम इज्जत व एहतराम के साथ उतारा जाता है कि एकदम खुदा के दुश्मन ने खुदा का नाम लेकर खुदा के बंदों को धमाके से उड़ा दिया। अली वकार, हर सू इंसानी अज़ा बिखरे हुए नजर आते हैं। वहाँ मौजूद लोगों का लहू उस सब्ज हलाली परचम पर भी पड़ता है कि जिसे अभी अभी इज्जत एहतराम के साथ उतारा गया था। वहाँ मौजूद लोगों का लहू दुश्मन को ललकार रहा है। वहाँ मौजूद लोगों का लहू यजीदियत को हुसैनियत का पैगाम सुना रहा है कि अली वकार, 2 नवंबर का सूरज फिजा को सोगवार बनाए गुरूब हो जाता है, लेकिन जनाबे वाला अगले ठीक 24 घंटे बाद दुनिया ये मंजर भी देखती है कि जिस जगह की बू खून से रची बसी थी उसी जगह पर वही शहरी पाकिस्तान जिंदाबाद और जीवे जीवे पाकिस्तान के नारे लगाते हुए ये नवीद देते दिखाई देते हैं। खूने दिल देकर निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। सदर अली वकार,
हाँ, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है कि जेम खाना क्लब में शाम की चाय पीने का दावा करने वालों को मैं मेजर अजीज़ भट्टी बनकर उनके ख्वाबों को ज़मीन में मिला देता हूँ। सदर अली वक़ार, हाँ, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है कि राशिद महनाज बनकर दुश्मन के त्यारे का रुख मोड़ देता हूँ और उसके नापाक इरादों को ज़मीं बोस करता हूँ। अली वक़ार, हाँ, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है कि कभी MM आलम तो कभी सिपाही मकबूल हुसैन तो कभी ताहिरा काजी बनकर दुश्मन को ये ललकारती हूँ कि अरे गोली इन बच्चों पर क्या चलाते हो, अगर गोली चलानी है तो मुझ पर चलाओ। जनाब सदर, मेरा दुश्मन मुझे आग से भड़कते हुए तंदूर के अंदर फेंक रहा है, मगर मैं खलीलुल्लाह का मानने वाला हूँ कि मुझे आग में झुलसना तो मंजूर है, मगर मैं नमरूदे वक्त के सामने घुटने नहीं टेकूंगा। जनाब सदर, मेरा दुश्मन मेरी माँओं और बहनों की रदाओं तक की कुर्बानियाँ मांग रहा है, मगर मैं हुसैनी हूँ कि मैं ना तो नमरूदे वक्त के सामने घुटने टेकूंगा और अपनी आवाज़ को बुलंद करूंगा। और तो और जनाब सदर, मेरा दुश्मन मुझे शाम की चाय लाहौर के जिमखाने में पीने की धमकी दे रहा है, मगर मैंने भी असदुल्लाह का होने वाले का सबूत दिया और अपने फौजी साथियों को हुक्म दिया कि अरे सुन, किसी की ना सुन और एक ही धुन में बुन, तमाम सरों को काट दे, दश्ते शामो वजूदो सहर बुलंद कर। ऐ वतन तूने पुकारा तो लहू खोल उठा, तेरे बेटे तेरे जांबाज चले आते हैं। जनाब सदर, गोलियों की बौछार है, शोले उगलती तोपें, आग बरसाते जंगी जहाज। ये है मंजर 6 सितंबर 1965 की सुबह का, कि जब भारतीय फौज मेरे वतन अजीज पर हमला आवर हुए। सुबह का नाश्ता लाहौर में करने का ख्वाब लिए, अपनी आंखों में ख्वाब लेकर वो पाकिस्तान की सरहदों में दाखिल हुए। उस अक्ल के अंधे का ये ख्याल था कि पाकिस्तान की फौज घोड़े बेचकर सो रही है, मगर शायद वो ये भूल गया कि शेर सोकर भी शेर ही रहता है। जनाब सदर, मेरा दुश्मन जो कम फहम भी है और खुश फहम भी, उसका ख्याल था कि मैं हरफे गलत की मानिद हूँ, मगर वो भूल गया कि हम इब्ने रुश्द ही नहीं, हम जाबिर हैं, हम इब्ने खुल्दून तिबरी हैं, हम इब्ने सीना इब्नुल हैसम हैं, हम शायरी में शिराजी हैं, हम नगमागिरी में फिरदौसी हैं, हम हयान हैं निशापुर के, हम नगमागिरी में फिरदौसी हैं, हम शायरी में शिराजी हैं। जनाब सदर, 1965 की जंग में जब पाकिस्तान की फौज को फतह हासिल हुई तो मेरा दुश्मन ये सोचकर परेशान रह गया कि मेरा ताल्लुक उस कौम से है जो जड़ से जबर मिटाती है, दुश्मन को मार भगाती है। हम तोप से कब घबराते हैं, हम टैग से भी लड़ जाते हैं। जनाब सदर, आखिर पर अपने दुश्मन को बस इतना बावर करवाते हुए कि हम तो वो प्यास है जो दरिया के गरूर को भी पाश पाश करते, हम तो वो इंसान हैं कि जो ना तो राह जहाज से पीछे हटते हैं और ना ही अपनी जान की कुर्बानी देने से दरेक करते हैं। तो फिर ये मत भूल कि अगर तू तलाश करे मुझे महाज पर तो ढूंढ मुझे तू अपनी जहाज पर। बहुत शुक्रिया। दुश्मन के कदम आए गर पाक वतन में, हम उसको सुला देंगे मिट्टी के कफन में। बन जाएंगे बातिल के लिए कहरे इलाही, हम मिल्लत इस्लाम के जाबाज सिपाही। लहराएंगे हर हाल में इस देश का परचम, रोके बढ़ने से हमें दुश्मन में कहाँ दम। नाजरीन, हर साल 6 सितंबर यौम दिफा के हवाले से हम न सिर्फ अपने गाजियों को, शहीदों को, मुजाहिदों को सराहते हैं, बल्कि दुश्मन को भी उसकी औकात बताते हुए उसकी शिकस्त याद दिलाते हैं। वो दुश्मन जो सोचता था कि शायद शाम को जिमखाने लाहौर में चाय पिएंगे, शायद रात को शराबों और कबाबों की महफिल सजाई जाएगी, और वो दुश्मन जिसे बहुत गुरूर था अपने टैंकों पर, तो फिर वो हम ही थे
जो अपने जिस्मों से बमों को बांध कर उन टैंकों के नीचे लेट गए और उस जमीन को टैंकों का कब्रिस्तान बना दिया। अपने आहनी फिजाई तैयारों पर गुरूर करता था दुश्मन, तो हमारे सिर्फ एक कैप्टन MM आलम ने 55 सेकंड में फिजाई तैयारों को नीस्तो नाबूद करते हुए दुश्मन के 14 तबक रोशन कर दिए। क्योंकि दुश्मन शायद भूल गया था कि उसने किस कौम को ललकारा है। वो कौम कि जिसका हर फर्द एक सिपाही है। हम इब्न कासिम हैं, हम खालिद के जानशी हैं, हम पैगाम अमन के सफ़ीर हैं, हम फूलों की महकार, गौरियों की झनकार, हम तारिक बिन ज़ियाद की तलवार हैं, हम इब्न कासिम की अलगार हैं, हम जज्बे फारूकी से सरशार हैं, शोहदा के वारिस, गाजियों की जमात, हम फातिहीन लश्कर हैं क्योंकि हम पाकिस्तान हैं। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। सदर आली वकार, मुहतरम उस्ताज़ इकराम और मेरे अजीज़ हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जनाबे वाला, आज की इस पुरवकार तकरीब में जो कि यौम दिफाए पाकिस्तान के हवाले से मुनक़द पजीर है, मुझे लब कुशाई की सादत मिल रही है। 6 सितंबर 1965, जनाबे वाला, ये वो दिन था कि जब एक गीदड़ ने शेर के पिंजरे में हाथ डालने की कोशिश की थी। जनाबे वाला, ये वो दिन था कि जब हमारे दुश्मन भारत ने पाकिस्तान के सरजमीन पर कब्जा करने की एक नाकाम कोशिश की थी, मगर हमारा दुश्मन एक बात भूल बैठा था कि वो जिस मुल्क पर कब्जा करने जा रहा है, उस मुल्क की धरती की हिफाजत के लिए उसके जानिसारों का लहू बोलता है। जनाबे वाला, दुश्मन एक बात भूल बैठा था कि वो जिस मुल्क पर कब्जे के लिए जा रहा है, उस मुल्क की बुनियाद रियासत मदीना पाक की तरह ला इलाहा इल्लल्लाह पर रखी गई। जनाबे वाला, अगर हम तारीख के औराक पलट कर देखें तो ऐसी कि एक लातादाद मिसालें मिलती हैं जो ये साबित करती हैं कि फतह लहू मांगती है, और ये लहू ही है कि जिसकी वजह से तारीख अपना रुख बदलती है। जनाबे वाला, जब 1965 की जंग में पाकिस्तानी अफवाज ने अपने सीनों पर बम बांधकर चविंडा के मकाम पर टैंकों का कब्रिस्तान कायम किया, तो उन्होंने ये साबित किया कि लहू बोलता है। जब पाक फजाइया के शहबाज MM आलम ने दुश्मन के 9-5 हथियारों को 1 मिनट में गिराया, तो उसने ये साबित किया कि लहू बोलता है। लेकिन सामीन, आज के इस बरसरे इक़्तिदार के लोग इस बात से नाआशना हैं कि लहू जान देने की नवीद भी सुनाता है और जरूरत पड़ने पर बोलता भी है। दौरे हयात आएगा कातिल कज़ा के बाद, है इब्तिदा हमारी तेरी इंतहा के बाद, है इब्तिदा हमारी तेरी इंतहा के बाद। सामीन, इसी तरह जब बर्मा में छोटे मासूम बच्चों को जिंदा जलाया जाता है तो दुश्मन एक बात भूल जाता है कि लहू बोलता भी है। जब फलस्तीन में नौजवानों पर जहरीली गैसें फेंकी जाती हैं तो कातिल एक बात भूल जाता है कि लहू बोलता भी है। जब कश्मीरियों पर गोलियां बरसाई जाती हैं तो कातिल एक बात भूल जाता है कि लहू बोलता भी है। कातिल मेरा निशान मिटाने पे है बजिद, मैं भी सिना की नोक पे सर छोड़ जाऊंगा। लश्कर करेंगे मेरी दलेरी के तस्करे, मरकर भी जिंदगी की खबर छोड़ जाऊंगा, मरकर भी जिंदगी की खबर छोड़ जाऊंगा। शुक्रिया। वनुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे अजीज हमवतनों, अस्सलामु अलैकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लबकुशाई करने का मौका मिला है उसका उन्वान है यौम दिफाए पाकिस्तान। एक फर्ज निभाना है मुझको, एक कर्ज चुकाना बाकी है। एक फर्ज निभाना है मुझको, एक कर्ज चुकाना बाकी है। कुछ उनकी बूंदे हैं मुझ में, उनको भी लुटाना बाकी है। सफर में जो मैं निकला हूँ मेरी माँ की आंखें भीगी हैं। ऐ दोस्त जरा ठहरो तो सही, एक आंसू मिटाना बाकी है। पाकिस्तानी कौम ने कभी जंग में पहल नहीं की, लेकिन ये कौम दिफा करना खूब जानती है। जारियत कभी की नहीं और दिफा में कोई कसर कभी छोड़ी नहीं। दुश्मन बार बार आजमा चुका है और बार बार मुंह की खा चुका है। इसीलिए जंग सितंबर की याद में आज यौम दिफा मनाया जा रहा है। वही कौमें दुनिया में अपना वजूद बरकरार रखती हैं और जिंदा रहती हैं जो अपना
अपना मजबूत दिफा करती है। पाकिस्तानी कौम ने भी 6 सितंबर 1965 के शब गैर इलानिया जंग का मुकाबला करके ये साबित कर दिया कि वो भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखती है। 6 सितंबर 1965 की शब हमारे हमसाया मुल्क भारत ने रात की तारीकी में पाकिस्तान पर हमला कर दिया, लेकिन सरहदों के मुहाफिज जाग रहे थे। पाकिस्तानी कौम ने लाहौर के जिमखाना में चाय पीने के दुश्मन के हाथ चिकना चूर कर दिए। कौम अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़ी हो गई। और अगर दीगर सामान के ही ढेर नहीं लगाए, नौजवानों की टोलियां दुश्मन से दो दो हाथ करने घरों से निकल आई। आर्मी चीफ के इस्तेगाम पर कि हर एक फर्द 1 रुपया दे, वो एक टैंक देंगे, कौम ने बढ़ चढ़कर चंदा पेश किया। 1965 को पाकिस्तान पर शबे खून मारा तो इसका ख्याल था कि रातों रात पाकिस्तान के कई हिस्सों पर कब्जा करेंगे और नाश्ता लाहौर के पाए खाएंगे। इन्हें अंदाजा नहीं था कि शेर सोया हुआ भी शेर ही होता है। अवाम में पाकिस्तान और अफवाज पाक ने मिलकर दुश्मन का मुकाबला किया। सरों पे कफन बांधकर दुश्मन से भर गए, जिस्मों से बारूद बांधकर टैंकों के आगे लेट गए। अवाम ने अपना सब कुछ दिफाए वतन के लिए कुर्बान कर दिया। इसका बेहतरीन मुजाहिरा 6 सितंबर 1965 को किया गया। इंतहाई बेसरो समानी के आलम में भी जुर्रत और बहादुरी की वो दृश्य मसाले कायम की गई कि तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखी जाएंगी। ये अयाम फैसला कुन होते हैं। अगर कुर्बानी का हक अदा न किया जाए, जानो माल को वतन पर तरजीह दी जाए, माँ की ममता अपने जिगर गोशे को कुर्बान करने से गरेजा हो, बूढ़ा बाप अपने खानदान का सहारा खोने के लिए तैयार न हो, तो फिर वतन अपना वजूद खो बैठते हैं। कौमें तारीख का हिस्सा और पारीना किस्सा बन जाती है और आजादी के बजाय गुलामी की जिंदगी कौमों का मुकद्दर बन जाती है। गुलामी में न काम आती है शमशीरें न तदबीरें। जो हो ज़ौक़-ए-यकीन पैदा तो कट जाती हैं ज़ंजीरें। पाकिस्तान जिंदाबाद।